सो गाइज कंटिन्यू करता है जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो एज यू कैन सी कि हम लोगों ने अभी जो एल्गोरिदम जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो था हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक हम लोग वीडियो देख लेते हैं, देन हम लोग थियरी पे आते हैं। ध्यान से देख लो एक बार, देन विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल नोट्स। देख लो ध्यान से। Let's see highest response ratio next. The name itself says that we are going to find something called as response ratio, and now whichever process is having the highest of this, we are going to take it. So what is response ratio is waiting time plus service time by service time. So W means waiting time for a process so far, which means whenever you are standing at a point of time, and till that point, whatever is the waiting time, that is called waiting time W here. So W is not the final waiting time. W is what is the waiting time at the point of your computation. So whenever you are computing it, at that point you find out the waiting time. Okay, that is W. And then S is service time or the burst time. So S is nothing but the service time. Now for every process, what we do is we find out this factor, and now among all the processes, whichever is having this highest value, we are going to pick it up, right? So here we are not purely depending on the burst time. We are depending on the burst time as well as waiting time. So how are we depending is, see, whenever this burst time is less, see this, whenever this burst time is less, yes, that will be having the higher value, fine. But along with that, if a process has been waiting for a long time, then that one will get the higher value, isn't it? So it is tricky, but then understand this. So if the job is having the shortest burst time, that is going to get higher value. Along with that, if the process is waiting for a long time, that will also get the higher value. So what is the main difference between shortest job first and this one is, in shortest job, we were always taking the shortest possible job. But here we are taking both the burst time as well as waiting time, which means if a longer job, if a job with lot of burst time has been waiting for a long time, then that will also get scheduled, right, like this. And S is the service time, which means is HRRS not only favors the shorter jobs. Why does it favor the shorter jobs? Because denominator, there is service time. Therefore, lesser the service time, higher the factor. Therefore, it favors the shorter job, but also limits the waiting time of longer jobs, which means it will not let a job wait for a long time because it is having a large burst time. With the examples, it will be clear. Mode is non-preemptive. Non-preemptive means once we pick up a job, we are going to run to completion. So till a job completes, we are not going to let it go, right? So that is what it is. Now take this example, and we shall see how to, how does this one work on this. Now at time 0, I am going to start it. At time 0, I am going to start the process P0, and I will be running it till completion. Why it is non-preemptive? Therefore, at 3, now at 3 this process P0 gets completed. Now if you look at time 3, only one process has arrived by then, which is P1. Therefore, I don't have any other choice. So I am just scheduling P1. And now what is it? So P1 is going to run for 6 units. Therefore, now the time is 9. Therefore, by time 9, all the remaining 3 are available. 2, 3, 4 are available. Now, which one should I pick among these? That depends on the response ratio, right? Now, let's see the response ratio of each one. Response ratio of P2, process 2 is, what is the waiting time? It came at 4 and now the time is 5. Therefore, what is the waiting time so far? 9 minus 4, which is nothing but 5, right? 5 plus, then what is this burst time? Burst time is 4 divided by 4, right? Which is nothing but 9 by 4. I think you will get 2.25. Okay, that is response ratio of P2. And now you can compute the response ratio of the process 3. So response ratio of process 3 is, waiting time is nothing but it came at 6 and now the time is 9. Therefore, it waited for 3 plus burst time is 5. Therefore, divided with burst time, right? That's what we get. We get 8 by 5, right? Which is 1 point, I think 6. 1.6, yes. Okay.
And the next one is response ratio of 4. You have to find out all the response ratios of the process remaining, right? And now it came at 8, therefore it waited for 1 because now the time is 9 and its burst time is 2. Therefore 3 by 2 is 1.5. So these are the response ratios of second process, third process and fourth process. Which one is having the highest response ratio? This one, right? Therefore I am going to pick up the second process and schedule it. So P2 will be scheduled. And how long does it run? It will run for 4 units, which means till 13 it is going to run. Understood that? Okay, now the ओके सो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया. दिस इज़ द ओनली थिंग जो हम लोगों को समझना था. ये कैलकुलेशन अब मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट समझा नहीं पाता था. दैट्स वाई हम लोगों ने एक वीडियो से देखा. सो यहाँ पे सेम दिया है देखो, और उतना ही आपको याद रखना है. वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम डिवाइड बाय सर्विस टाइम, और उसके हिसाब से हम लोग अपने जॉब्स जो है उसको शेड्यूल करेंगे. सो रिमेंबर, जो हम लोगों ने वीडियो में देखा, यू ओनली सपोज टू नोट डाउन कि हाँ कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कैलकुलेशन. सो जो अभी हम लोगों ने देखा उसका मैं एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप नोट कर लेना उसको. ठीक है, जस्ट 1 minute, I'll just add a screenshot. ओके सो देखो, मैंने वो सेम जो अभी हम लोगों ने देखा वो पॉइंट तक का मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है. वो आपको नोट कर लेना अपने नोट्स में. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट. व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स? हाँ, this one. So what are the different principles that which must be considered while selection of the scheduling algorithm? So क्या होना चाहिए? हर प्रोसेस के पास एक हर प्रोसेस को आपको सेम वे में ट्रीट करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक जॉब जो है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, कोई जॉब जो है वो आते ही अपना काम खत्म कर रहा है. हाँ, प्रायोरिटी वाइज कभी कभी ऐसा होता है. लाइक अभी आप देखो कि अगर कॉलेज में हम लोग कोई एक प्रोफेसर को एग्जाम काम या अपना कुछ काम करना है और साथ में लेक्चर भी जाना है, तो आप बहुत टाइम से प्रिंटर के लिए रुके हो. लेकिन अगर कोई प्रोफेसर को अर्जेंट काम है तो वो क्या करेगा? वो बीच में आएगा, अपना काम खत्म करेगा, फिर वापस चले जाएगा. लेकिन जो बाकी जो स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड इक्वली. गेटिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब कोई आ रहा है, दैट्स डिफरेंट. लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो ऑल प्रोसेस या ऑल स्टूडेंट्स शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली. अब अगर कोई स्टूडेंट अगर लैब असिस्टेंट को पहचानता है तो उसको हम लोग पहले अलाउ कर देंगे. दिस विल नॉट हैपन. देन मैक्सिमम थ्रूपुट बराबर है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम शुड बी सर्विस्ड. सो क्या होगा? आपका सीपीयू का एफिशिएंसी मेंटेन रहेगा, आपका काम उतना स्मूथ चलेगा. प्रेडिक्टेबिलिटी, अ गिवन जॉब शुड रन इन अबाउट द सेम प्रेडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट अबाउट द सेम कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड ऑन द सिस्टम. दैट इज द सेकेंड थिंग. सो अगर प्रिंटर के लिए सपोज कोई दूसरे स्टूडेंट को अगर 5 मिनट मिला था तो मुझे भी उतना ही टाइम मिलना चाहिए, चाहे लोड कम हो या ज्यादा हो. मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है? सिस्टम रिसोर्स शुड बी केप्ट बिजी. इनफाइनाइट पोस्टपोनमेंट शुड बी अवॉइडेड बाय एनफोर्सिंग द प्रायोरिटी. आप देखो कि आप जब कोई एक प्रिंट जॉब भी देते हैं ना, तो वहां पे भी प्रायोरिटी डिफाइन होता है जो प्रिंट जॉब आप देते हैं. तो अगर नॉर्मल प्रायोरिटी है अगर सारे जॉब्स का, तो वो सारे फिर इक्वली अपने अपने सीक्वेंस के हिसाब से क्यू में ही जाएंगे. अगर किसी का प्रायोरिटी अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिर वो बीच में जाएगा पहले. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई जॉब को अगर हम लोग पोस्टपोन करते जा रहे हैं, जैसे कि समझो कि अचानक अगर एक एग्जाम ड्यूटी आ गया प्रोफेसर्स को, तो अब क्या है कि एक प्रोफेसर आया, उसने कुछ अपना प्रिंटिंग जॉब या जो भी है वो खत्म किया, 10-15 मिनट लगा. वो खत्म होने पे वापस स्टूडेंट का नंबर आने वाला था, उतने में कोई दूसरा प्रोफेसर आया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे 10 प्रोफेसर्स अगर लाइन से आ गए, सबको अपना अपना काम था. तो अब स्टूडेंट क्या हो गया? उनका जो जॉब है वो पोस्टपोन ही होते जा रहा है. दे आर अंडर अ स्टारवेशन कंडीशन. स्टारवेशन कंप्यूटर में प्रोसेस का स्टारवेशन हो गया. स्टारवेशन समझते, भूखमरी. So मतलब they are hungry for resources, they need those resources, they are demanding for those resources, लेकिन उनको resources मिल ही नहीं है. So वो starvation situation जो है, it should not be created for any process in our system. ठीक है, सच में ऐसा हो सकता है.
सडनली अगर एग्जाम प्रोसेस या एग्जाम काम आ गया तो प्रोफेसर्स जो है वो स्टूडेंट अगर कुछ प्रिंट ले रहे हैं तो उसके बीच में दे विल फिनिश अप देयर एग्जाम वर्क। और प्रोफेसर्स की अगर अपने खुद की क्यू लगे रहेंगे तो स्टूडेंट के तो नंबर ही नहीं आने हैं, उनका क्यू खत्म होने के बाद में स्टूडेंट का क्यू जो है वो स्टार्ट होगा। तो अब दो प्रोफेसर्स पहले आए थे, जैसे ही उनका काम खत्म होने आया और दो आ गए, उनका काम खत्म होने आया और दो तीन आ गए। तो अब जब तक उनका काम खत्म नहीं होगा स्टूडेंट का नंबर ही नहीं आएगा। सो स्टूडेंट के प्रोसेसेस जो बहुत टाइम से वेटिंग में है वो और पोस्टपोन होते जा रहे हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, दैट इज द मेन थिंग, जिससे ये जो स्टारवेशन टाइप सिचुएशन या आप कंटिन्यूअसली इनडेफिनेट टाइम तक स्टूडेंट्स का प्रोसेस जो पोस्टपोन कर रहे हैं ना वो ना हो। अब अगर आप देखो कि एक दो तीन ऐसे 10 प्रोफेसर आ गए तो मतलब क्या हो गया, इनडेफिनाइट टाइम तक स्टूडेंट के प्रोसेस जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं। अब स्टूडेंट को खुद को भी नहीं पता है कि कभी मेरा नंबर आएगा, लेकिन अब उसको वेट करना पड़ेगा। कंट्रोल टाइम, there should be a control over the different time, response time वो कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा डिले भी नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो अभी हम लोगों ने ऊपर जो एल्गोरिदम देखा उसका मेन रीजन क्या था, जो भी प्रोसेसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ रहे हैं उनका वेटिंग टाइम एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, शोन बिलो इज द वर्कलोड फॉर 5 जॉब्स अराइविंग एट टाइम 0 इन ऑर्डर गिवन बिलो। सो हम लोग के पास सारे जो जॉब्स है वो कभी आ रहे हैं 0 सेकेंड पे आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं दिया है, लेकिन बर्स्ट टाइम सबका दिया है। पहले का 10, 29, 3, 7 एंड 12 है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन। ये जो देखा राउंड रॉबिन में क्वांटम कितना दिया आपको, 10 का क्वांटम दिया है। सो उसके हिसाब से वी सपोज टू फिनिश दी जॉब्स। सो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, पहला जॉब पहला आया, सारे 0 सेकेंड पे आ रहे हैं, तो जॉब 1 उसको मैंने 10 सेकेंड का टाइम दिया, देन जॉब 2 इसका जो 29 सेकेंड का काम था वो हम लोगों ने किया, देन जॉब 3, देन जॉब 4 एंड जॉब 5, यही है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेटिंग टाइम क्या है, जॉब 1 के लिए तो कोई वेटिंग टाइम नहीं है, जॉब 2 के लिए 10 सेकेंड का है, जॉब 3 के लिए 39 सेकेंड का है, जॉब 4 जो बहुत छोटा सा काम था उसके लिए वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, देन जॉब 5 के लिए जो लास्ट में था उसके लिए तो वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। ये आप एग्जाम में वाइवा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप लाइन में बैठे हो, कोई एक बैच में आपका नंबर लास्ट है, तो अगर हर स्टूडेंट को अगर हम लोग 5-5 मिनट वाइवा कंडक्ट कर रहे हैं तो आपका 30 स्टूडेंट्स है तो 30 मल्टीप्लाई विथ 5 मिनट्स ईच बराबर है, उसके हिसाब से आप समझ लो कि आपका टाइम कितना होगा। और उसमें भी अगर बीच में ब्रेक आ गया तो 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर और एक्स्ट्रा। सो ये हिसाब से अगर एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम लोग गिनेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम देखो बहुत बेकार है यहाँ पे, 28 सेकेंड्स, या अगर मिनट्स में अगर हम लोग काउंट करें तो सपोज कि मैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पर स्टूडेंट अगर वेटिंग टाइम अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम मेरा 28 मिनट्स का आ रहा है, विच इज़ वेरी बैड। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सो शॉर्टेस्ट जॉब में हम लोग क्या करेंगे, सारे जॉब्स जो है आपके सारे जॉब्स आपके अराइवल टाइम क्या है, 0 ही है। अब ऊपर वाला टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला जॉब कौन सा जाएगा, थर्ड वाला जाएगा, दूसरा फोर्थ वाला जाएगा, तीसरा फर्स्ट जॉब जाएगा, देन फोर्थ जाएगा, देन सेकंड जाएगा, बराबर है। तो पहले वाले जॉब को तो वेट नहीं करना पड़ा, 0 सेकेंड पे काम हो गया। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अगर हम लोग लेंगे तो 0 से 3 सेकेंड इसका काम चला, देन थर्ड सेकेंड से इसका काम चलेगा, तो फोर्थ जॉब ने कितने सेकेंड के लिए वेट किया, 3 सेकेंड्स के लिए, इसका काम कभी खत्म हुआ 10वें सेकेंड पे, तभी फर्स्ट जो जॉब है इसने अपना काम खत्म किया 20 सेकेंड पे, इसका खत्म हुआ, देन फोर्थ जो है 20 सेकेंड से चालू करेगा। सो 20 से 12 अगर हम लोग गिनेंगे 32 सेकेंड, और 32 सेकेंड पे जॉब 2 अपना काम चालू करेगा। सो ऐसे ही आपको दिखेगा, देखो 3, जॉब 4 को 3 सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा, देन जॉब 1 को 10 सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा, जॉब 5 को 20 सेकेंड के लिए, एंड जॉब 2 को 32 सेकेंड के लिए। सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम देखो हम लोग का कितना हुआ, 13 सेकेंड। ऊपर वाले में एवरेज वेटिंग टाइम हम लोग का 28 सेकेंड्स था, उससे वो डायरेक्टली हाफ से भी कम हो गया। सो दिस इज द बेस्ट वन। एंड राउंड रॉबिन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जॉब 1 हम लोगों ने चालू किया और उसके बाद अगर दूसरा कोई जॉब आया जो अभी हम लोग फिलहाल जो प्रोसेस में जॉब है उससे छोटा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे स्विच कर देंगे। तो जॉब 1 कंटिन्यूअसली चलते रहा, देखो
ठीक है, 10 सेकेंड पे खत्म हो गया, जॉब 2 चालू हुआ, जॉब 2 चालू हुआ, उतने में ही हम लोग के पास जॉब 3 आया, तो हम लोगों ने क्या किया, जॉब 3 प्रोसेस किया, देन जॉब 4 प्रोसेस किया, बिकॉज इट वाज स्टिल स्मॉलर कंपेयर टू जॉब 2, देन सेम वे देन हम लोगों ने जॉब 5 कंप्लीट किया, बिकॉज इट वाज स्टिल स्मॉलर टू जॉब 2, देन वापस जॉब 2 आया, फिर वापस जॉब 5 आया, देन जॉब 2 आया, ये सेम सीक्वेंस ऊपर राउंड रॉबिन वाला वही है। सो यहाँ पे अगर आपका एवरेज वेटिंग टाइम देखेंगे तो अगेन क्या हो गया, 23 हो गया। सो आप देखो, अगर मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लेता हूँ, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे एज पर दिस, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जॉब्स जब कम है तो मेरा एवरेज वेटिंग टाइम कम तो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स अगर बहुत ज्यादा है तो फिर वो टाइम पे जो लंबा प्रोसेस है ना, जिसका टाइम बहुत ज्यादा है, वो तो बेचारा फिर एकदम वेटिंग मोड में ही चले जाएगा, गेटिंग अपना काम खत्म करने के लिए। तो इतना ज्यादा भी आपको वेट नहीं कराना है। तो इसके लिए शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है गिव्स द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, लेकिन जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर लेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर बहुत ज्यादा है तो वो टाइम पे जिसका टास्क या जिसका काम बड़ा है ना, वो तो बेचारा बहुत ज्यादा वेटिंग मोड में चले जाएगा, उसका नंबर तो बहुत लास्ट में आना है, and that is not good. Okay, explain the pseudo parallelism, describe the process model that makes parallelism easier to deal with. तो सूडो पैरेललिज्म का मतलब क्या है, आपको लगता है कि आपके जो प्रोसेस है वो पैरेलली चल रहे हैं, एक साथ सारे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सूडो मतलब डमी या रॉन्ग, मतलब विच इज नॉट करेक्ट। तो सूडो पैरेललिज्म मतलब दिखने में सारे जॉब जो है वो पैरेलल साथ में चल रहे हैं। जैसे अभी अगर मैं अपने कंप्यूटर पे ब्राउजर, MS टीम, PDF एक्सेट्रा एक्सेट्रा साथ में चला रहा हूँ, तो ये मेरे लिए वो साथ में चल रहा है, लेकिन उनके बीच में स्विचिंग हो रहा है। जब अगर आप बैकएंड में अगर आप देखेंगे तो ये सबके बीच में क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है, और वो स्विचिंग इतना फास्ट होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि वो स्विचिंग हुए हैं प्रोसेस में। ठीक है, सो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ सूडो पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म अगर आप देखेंगे तो आपके मल्टीपल प्रोसेसेस जो है उनके बीच में स्विचिंग होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें एक एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे, I'll just give you one example. यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपको एक पैरेलल कंप्यूटिंग कैसे होता है वो दिया है, ध्यान से देखो। Welcome to another video from Fast Tech Skills series. In this video, I'm going to talk about a very interesting concept, which is parallel computing. This topic, or this way of computing, I should say, has been very, very popular in the past years. And there's a specific reason why, which I'm going to discuss in this video. But let's have a look at traditional computing, the type of computing which is not parallel. So we have the processor here, and the instructions come in, and the processor does the processing, and then you have the processed data here. As you can see, there's a queue of new instructions coming in, and the processor is doing its job, and then we get kind of processed data out of it. Now, there's a problem with this approach, especially in the past couple of years, and the problem is that we can only make this processor faster to a limit. There is a frequency limit, and the reason, there are plenty of reasons actually, but one of the important ones is heat, because these processors are very, very kind of condensed. So the amount of heat generated by electrons moving through the processor is very, very high. And that's one of the reasons why we can't really increase the speed of processors, one single processor, because it will melt down. So because of this reason, we had to take a different approach. So if we want to increase the speed, but we can't really increase the speed in one single processor because of heat, then what can we do? So one thing we can do is to increase the number of processors. This way, we have two processors running simultaneously, and we divide the tasks between these two processors.
This is called parallel computing. Two processors running at the same time, doing the calculations, and we divide the workload between these two processors. Of course, this introduces a new set of potential problems, and one of them is more bugs, because you should know when, first, which instructions you need to divide, and what instructions need to be dedicated to each of these processors. Because let's say that you assign kind of a process to this processor here, and that task gets done fast, but this task is dependent on a process which is currently being run by the other process here. So you can have a kind of latencies, you can have a different kind of problems when it comes to writing programs for parallel systems. Of course, majority of computers, especially since past couple of years, all the computers are running on multi-core processors. So that's another thing. Each processor in the modern computing is called a core. So a quad core, a dual core, that's basically, that explains the number of processors. Okay, so parallel processing is required, as you can see in this part. बट एक सिंगल प्रोसेसर जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, मतलब दो तीन प्रोसेस को वो एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जो प्रोसेसेस जो है वो कॉनकरेंटली वर्कआउट होंगे. कॉनकरेंटली, ओके, कॉनकरेंटली वर्कआउट होता है वो. और वो कॉनकरेंटली वर्कआउट होना क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको लगेगा कि वो प्रोसेसेस जो है वो पैरेलल में चल रहे हैं, लेकिन वो स्विचिंग होता है. स्विचिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, स्विचिंग बिटवीन आपके प्रोसेसेस. ओके, सो वो जो स्विचिंग होता है बिटवीन प्रोसेसेस, वही आपका सूडो पैरेललिज्म बोलता है. तो वो स्विचिंग इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसने कभी आपके एक प्रोसेस से स्विच करके दूसरे प्रोसेस पे गया, दूसरे से स्विच करके वापस फर्स्ट पे आया, वापस वहां से सेकंड पे गया. इट्स लाइक दैट. इट इज सो फास्ट और सो क्विक. जैसे हम लोगों ने बोला फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में वो काम करता है. तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में जो काम हो रहा है ना, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा. पैरेलली अगर आपको काम करना है तो आज के हम लोग के कंप्यूटर जो मल्टीपल कोर्स में डिवाइडेड रहते हैं, वो मल्टीपल कोर्स वाला जो पैटर्न है ना, वो हम लोग फॉलो करेंगे. अगर आप बोलते हो कि हम लोगों ने बेसिकली व्हाट वी से कि हम लोगों ने अगर एक ही प्रोसेसर है और वहां पे अगर आपको बेसिकली पैरेलल में अगर काम करना है, तो वहां पे वो पैरेलल में काम नहीं होगा, वहां पे स्विचिंग होगा बिटवीन द प्रोसेसेस. और वो स्विचिंग जो है वो फास्ट होना चाहिए, और वो फास्ट, जितना वो ज्यादा फास्ट होगा उतना आपका काम ज्यादा क्विक चलेगा. दैट इज व्हाट द मेन थिंग. कि आप समझो कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर में कोई एक प्रोसेस ऐड किया हुआ है, लेट्स सपोज कि मैंने लाइक वीडियो ऑन किया है, तो अब मेरा कंप्यूटर या प्रोसेसर क्या करेगा, 10 सेकेंड का वो वीडियो प्रोसेस करके वापस वो ब्राउजर पे जाएगा, और ब्राउजर पे अगर मैं कुछ ब्राउज करने की ट्राई कर रहा हूँ उसको वो प्रोसेस करके देगा. जैसे ही वो प्रोसेस खत्म हुआ उतने में मेरे वीडियो के 10 सेकेंड खत्म हुए रहेंगे, तो उतने टाइम में वो वापस मेरे पास आ जाएगा. तो ये जो स्विचिंग है ना, ये इतना फास्ट चलता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे हम गए और वहां से वापस फर्स्ट प्रोसेस पे आ गए. तो इसके लिए आपका, इसको हम लोग सूडो पैरेललिज्म बोलते हैं. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सूडो पैरेललिज्म. रिमेंबर, ये स्विचिंग होता है. ये जो स्विचिंग है, इसका आप अगर देखेंगे कि वो स्विचिंग आपको अपने कंप्यूटर में भी, आप टास्क मैनेजर पे जाएंगे ना, वहां पे ही आपको पता चलेगा. अदरवाइज नॉर्मली आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्विचिंग कैसे हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है. ओके, एनीवन, एनी डाउट्स? समझ में आ रहा है? Anyone? Any doubts? Hello? No sir, no doubt. ओके, सो अभी इसको हम लोग अगर टेक्निकली एक बार अगर समझे, सो वो सेम चीज होगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. आपका जो नोट्स है उसमें आपको यहाँ पे सूडो पैरेललिज्म का डेफिनेशन दिया हुआ है. देखो, all modern computers do many things at the same time. For example, computer can read some data from the hard disk,
printing job साथ में चलेंगे while running on the user program. In a multi-programming, CPU switches the program to program, running each program for a fraction of seconds और वापस फिर वो दूसरे प्रोग्राम पे जाएगा. तो जैसे अब अगर मेरा मूवी एक मैं देख रहा हूँ तो वो क्या करेगा, 10 सेकेंड का मूवी या 20 सेकेंड का मूवी जो मेरे लिए प्रोसेस करके बफर में रख देगा. तो VLC प्लेयर क्या करेगा, बफर से वो थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो लेके मुझे मेरा मूवी बताते रहेगा. अब जब तक वो मेरा बफर में जितना प्रोसेस किया हुआ MP4 फाइल है ना, वो जब तक खत्म होगा तब तक में CPU जो है वो बाकी छोटे छोटे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके वापस मेरे पास आके वापस वो 10 15 20 50 सेकेंड का वीडियो प्रोसेस करके बफर में डाल के वापस दूसरे प्रोसेस पे जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग वही बोल रहे हैं, ऑल्दो CPU इज रनिंग ओनली वन प्रोग्राम एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, CPU स्पीड इज वेरी हाई. So it can work on a several program in a seconds. It gives us user illusion of parallelism. That is the several process are being processed at same time. अब यहाँ पे रैपिड स्विचिंग हो रहा है बिटवीन द प्रोसेसेस. द CPU between switching back and forth of the CPU between the program gives illusion of parallelism. और इसको हम लोग सूडो पैरेललिज्म बोलते हैं. मतलब ये एक्चुअल पैरेललिज्म नहीं है. इट फील्स लाइक इट्स पैरेलल, प्रोसेसेस आपके सारे पैरेलल चल रहे हैं लेकिन वो एक के बाद एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं. गेटिंग? सो यहाँ पे वही दिया है देखो, वन प्रोग्राम काउंटर. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम ए को प्रोसेस किया, देन थोड़ा सा ये प्रोसेस होने के बाद हम लोग बी पे जाएंगे, फिर थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद सी पे जाएंगे, देन वापस थोड़ा प्रोसेस करने के बाद डी पे जाएंगे. और आपके कंप्यूटर पे ये सारे प्रोसेसेस जो है ना वो एक साथ दिख रहा है आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि आपका प्रोसेसर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये सारे प्रोसेस को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, मतलब वन बाय वन प्रोसेस कर रहा है. और वापस जैसे ही डी तो प्रोसेस हो गया, वापस इट विल कम बैक टू ए, देन वापस बी पे आएगा, देन सी पे आएगा, देन डी पे आएगा, देन अगेन इट विल कम बैक टू ए. और ये स्विचिंग जो है वो इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये स्विचिंग हो रहा है. आपको लगेगा कि सारे प्रोग्राम एक साथ ही चल रहा है. तो इसको हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं या सूडो पैरेललिज्म, जो भी आप बोलो वो ये सेम पैटर्न होगा. ठीक है. सो यहाँ पे देखो आपको दिया है, हम लोग के पास मल्टीपल प्रोसेस है और यहाँ पे टाइम है. तो जैसे मैंने बोला ए के लिए हम लोगों ने इतना टाइम दिया है, देन जैसे इतना पार्ट हम लोगों ने प्रोसेस करके हो गया, I'll give some time to B, देन C, देन D. और जैसे ही D का काम खत्म हुआ मैं वापस A पे आ रहा हूँ देखो, देन वापस B पे जाऊंगा मैं, वापस C पे, देन वापस D पे. और जैसे ही ये D का काम खत्म होगा वापस I'll come back to A, वापस यहाँ पे A का लाइन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे वापस A का लाइन आएगा एक. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं इसको हम लोग, इट्स कॉल्ड एज कंटेक्स्ट स्विचिंग. आप एक बार ध्यान से समझ सकते हो, सुन सकते हो, इट्स कॉल्ड एज कंटेक्स्ट स्विचिंग. लिखो कहीं पे आपको चाहिए तो, it's called as context switching in operating system. देखो मैं आपको एक वीडियो हम लोग देख लेते हैं, आपको और बेटर समझेगा अगर नहीं समझा है तो. सो सूडो पैरेललिज्म बोलो या कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलो, ये पैटर्न फॉलो होता है. ध्यान से देखो. Everyone is in here. Just go away, Dean. Don't always shit on me. Hi everyone, it's me, Jane. Glad to see all of you here. Have fun. So guys, guess what we will discussing today? Well, that will be our topic today. Don't sleep yet. Open your eyes and check it up, guys. Haha, isn't it funny? Well, let's just proceed to our topic. Hello. Now we will discuss more deeply about context switching. Okay, let's explore. As usual, as a student, let us do Mr. Google. Context
context switching, process of storing and restoring the states, more specifically, the context of a process or thread so that execution can be resumed from the same point at a later time. Okay, let's imagine there is two processes, process 1 and process 2. In order for the CPU to run another process, it needs to switch for the change from process 1 to process 2. This action will continue switching until both processes complete their task. Let's concurrent processing. Concurrent processing computing model in which multiple processors execute instructions simultaneously for better performance. As you watch the video earlier scenario, let's see the differences between concurrent processing and parallelism because many got confused between these two concepts. See these two diagrams. Concurrent processing and parallelism processing. Their time is different as we can see. So don't get confused after this. So what is the relation between context switching and concurrent processing? As we know, the concurrent process will run more than one process. So, to switch from one process to another process, the context switching play an important role to switch the process for the CPU to run. Next, when the process needs to switch. Clock interrupt, I/O interrupt, memory fault, and thread. Clock interrupt. Process has executed for the maximum allowable time slice. I/O interrupt. From the first semester we learned, the example of I/O devices are mouse, laptop. Okay. Next is memory fault. Memory address is virtual memory, so it must be brought into main memory. Thread, as the example is, error will occur, may cause process to be moved to exit status. Next is supervisor call, such as open file. After done switching, the state of all process will save into PCB 0, then load the save state from PCB 1 to the new process. Process state models. New process that create will admitted to a ready state, then dispatch to start running. Dispatcher will select the process from the ready queue for allocating it to CPU or processor. After completed the task, this process will exit and terminate it. But if there is interrupt while running the process, it can back to the ready state. Also, if there are I/O waiting for the process, they will be in waiting state. I guess it is not too late for me to exercise, right? I mean, see what I'm doing now. I will press the button to my lady. Baby boo, hurry up, we can't lose this. Come on, rock it, yeah. Yeah, that's it. Wait for me, honey, I'll get you. Go, go, go. Take this. Wow, well, that's my mom and my dad. Lastly, they make a good deal to make them film that scene. Okay, from the scenes, what do you think just happened? Did you see anything? It's okay. Just let me answering that. They make a switching. What? Yes, actually, they didn't make the switching, but the button did. Of course, the button didn't move by itself. Let's assume that my dad is process 1 and my mom is process 2, and the button is the CPU that runs the process. From my dad, then the button went to my mom. It just switched its position. To pass the button, my dad needs to run to my mom so that the button can switch from my dad's hand to my mom. And mom needs to wait for that, which is in ready state. Can you see the relation? So, my mom is the interrupter who ends my dad's run. When the button with my mom, so she will start running.
Fall asleep, huh? Sorry, baby boy. I need to wake you up. What was that? What was that? Where is it? Where? Relax, Dean. Nothing happened. You sure? Yeah, it's just you. Just got started and screaming like a girl. Funny. How dare you? So, what's up, Jane? Just wanna help our friends. They want to know what a concurrent and parallelism process. Can you show them? Oh, of course. Well, that's what a genius like me should do anyway. So, my fellow friends, let's start with a parallelism process first. Jane, do you bring your MP3 headphone? Yeah, they are. Good. Can you wear it and of course just play your music along? Oh, okay. I will do it, but it's not my fault if I didn't hear you. Okay, now Jane is enjoying the music. Let me ask her to do something else while she hears to the playlist. Jane, can you dance along with the music? Okay, now you can see Jane is hearing the music while dancing. She did two different things at one time. So this we call it as parallelism process. Now, look at the awesome guy singing while playing the guitar. We count it as parallelism too. It's so fun. I want to join them. Yahoo! It is a busy day. Get to work, Daddy. This is my dad. He is now doing his work, typing, do this and that on the computer. Okay, let's say he get a call from my mom. Of course, he's not going to ignore her. Well, it's my mom, you know. So he will let his work for a while, then talk to my mom. While my mom talk, Dad can leave her talking by herself for a while, then continue his job again. The situation maybe seems not too much different to the parallelism, but there is a difference. When it's come to parallelism, you do something at the same time without leaving one of it. But when it's come to concurrent process, you are doing a task, but if there is another task you need to do, you have to leave the task you are doing now for a while, before you continue to do it again after you finish the new task. Baby boo, hurry up, we can't lose this. Come on, red. So that was the main difference जो हम लोगों ने समझा. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो context switching बोलते हैं हम लोग या parallelism बोलते हैं. So I hope now this is very clear for everyone कि हम लोग pseudo parallelism जो है that is context switching जो है इसको pseudo parallelism बोलेंगे. तो आपके computers जो है वो processes के बीच में switching करते हैं. एक साथ सारे प्रोसेसेस काम नहीं कर रहे, स्विचिंग हो रहा है वो सबके बीच में. और वो जो स्विचिंग हो रहा है उसको हम लोग कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं या कॉन्करेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन बोलते हैं. पैरेलल का मतलब क्या हो गया, आप जब आज के टाइम पे मल्टी कोर प्रोसेसर यूज करते हैं तो एक कोर में कोई प्रोसेस चलते रहेगा, वो सेम टाइम पे दूसरे कोर में कुछ प्रोसेस चलेगा, दैट इज द पैरेलल वन. अगर एक ही प्रोसेसर है और वो जब अलग अलग प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो सबके बीच में स्विचिंग होगा, याद रखो. ठीक है. तो जो पहले कंटेक्स्ट स्विचिंग ही होता था, लेकिन उससे हम लोग का कंप्यूटर के प्रोसेसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाते थे. तो इसके लिए अभी हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव अ मल्टी कोर प्रोसेसर. आप देखो पेंटियम P1 P2 P3 P4 बराबर है, कोर 2 ड्यूअल कोर. यहाँ पे क्या था, 2 कोर आ गए. मतलब आपके प्रोसेसर को लॉजिकली हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट में अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग साइमल्टेनियसली चला रहे थे. और आज के टाइम पे आपके पास क्वाड कोर ऑक्टा कोर आता है, तो उसके अंदर आपका एक ही प्रोसेसर जो है वो लॉजिकली, प्रोसेसर एक ही होता है लेकिन वो लॉजिकली 4 पार्ट में 8 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. गेटिंग. और वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस चलता है. जैसे आप देख लो कि आपका एक प्रैक्टिकल का बैच है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके 2 बैच है. तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, आपका डिवीजन एक ही है ना, लेकिन लॉजिकली हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड करके एक बैच को हम लोग एक प्रोसेस बता रहे, दूसरे बैच को दूसरा प्रोसेस बता रहे. तो क्या हो रहा है, पैरेलली आपके हम लोगों ने लॉजिकली 2 कोर क्रिएट किए, बैच 1 एंड बैच 2. लेकिन वो परमानेंटली ऐसे ही रहता है क्या, नहीं रहता है. गेटिंग. आप जब लेक्चर में आएंगे तो वापस एक ही हो जाएंगे. टेम्पररी आप 2 बैच है, बैच 1 एंड बैच 2. बैच 1 का अलग प्रैक्टिकल है, बैच 2 का अलग प्रैक्टिकल है, और दोनों साथ में चल रहे हैं 2 अलग लोकेशन पे. तो आपका वो लॉजिकल सेगमेंटेशन है ऑफ योर प्रोसेसर, जहाँ पे पैरेलली वो 2 प्रैक्टिकल साथ में चल रहा है.
और वो दोनों का एंड रिजल्ट क्या होगा, आपके 2 प्रैक्टिकल्स एक साथ हो रहे हैं, आपका सब्जेक्ट वो फास्ट कंप्लीट होगा, दैट्स इट। और वो कभी ज़रूरत पड़ती है आपको 2 बैच की, क्योंकि एक बैच के पास एक अगर एक ही सारे स्टूडेंट को हम लोग एक साथ लाएंगे, सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसको सारा बैच एक ही साथ में पूरा क्लास वो सारे रिसोर्स को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए वी हैव दिस पैटर्न, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक कॉलेज में एक भी प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, आप जब से आए हो तब से हम लोग ऑनलाइन ही है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं होगा। एक आध प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे, आपने ऑनलाइन प्रैक्टिकल तो अटेंड किए, तो उसके 2 बैचेस जो बनते हैं उसका मेन रीज़न यही होता है, एक बैच का कोई दूसरा प्रैक्टिकल चल रहा है, वो सेम टाइम पे दूसरे बैच का कोई दूसरा प्रैक्टिकल चल रहा है। सो दैट इज हाउ आवर प्रोसेसर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन मल्टीपल कोर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, बाउंसर नहीं जा रहा है किसी को? हेलो गाइस? ओके ठीक है, यस सर। हाँ ओके गुड। सो अभी हम लोग दूसरे पार्ट पे जाते हैं। दूसरा पार्ट आपको देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजेस, आपके बुक में पेजेस होते हैं, ठीक है। सो वो पेजेस जो हम लोग बनाते हैं उसका मेन रीजन क्या है, आप एक बुक में मल्टीपल पेजेस बनाते हैं और वो पेजेस पे आप अलग अलग इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो समझो कि आज का हम लोग का एक लेक्चर हुआ है, तो आपका एक लेक्चर के सारे नोट्स एक पेज में नहीं बनते, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल पेजेस में डिवाइड करेंगे, राइट। सो उससे आपको हेल्प क्या होगा कि आपका जो मेनली एक ही फाइल, समझो कि ये पूरे लेक्चर का एक ही फाइल बनेगा हम लोग का, लेकिन वो फाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस रहेंगे, क्योंकि हम लोग का लेक्चर बड़ा था जो एक पेज में नहीं आ सकता। तो वो टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल पेजेस को कंबाइन करके आपने एक बुकलेट बनाया या एक नोट्स बनाया, और वैसे ही हम लोग एक असाइनमेंट बना सकते हैं फॉर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 या यूनिट 1, यूनिट 2, है ना। और सेगमेंट क्या है, मैंने पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है वो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन लॉजिकली मैंने उसको यूनिट 1 यूनिट 2 में डिवाइड किया है। मतलब एक्चुअल में वो यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसा किसी ने बोला नहीं है, मैंने हम लोग के प्रेफरेंस के लिए हम लोगों ने अलग अलग 5 यूनिट में एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया, दैट इज द सेगमेंटेशन। एंड हम लोगों ने वो पेजेस में डाला, बराबर है। मतलब ये जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग पेजेस में डाल रहे हैं कि चलो ये ओके, यूनिट 1 का ये लेक्चर हुआ, उसका ये इन्फॉर्मेशन है, यूनिट 2 का ये पार्ट हुआ, उसका ये इन्फॉर्मेशन है, गेटिंग। सो उसके हिसाब से क्या होगा, हम लोग का पेजिंग प्रोसेस भी काम करेगा। आई होप थोड़ा कुछ आपको समझ में आ रहा है। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि पेजिंग और सेगमेंटेशन एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। सो अगर आप देखेंगे, आपका जो मेन पार्ट होता है उसमें पेजिंग एंड सेगमेंटेशन दो अलग अलग रहता है, जिसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू हैंडल करते हैं। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट जो है एक बेसिक कंसेप्ट चलता है फॉर सेगमेंटेशन, जहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स बनाएंगे इन शॉर्ट हम लोग, और वो जो सेगमेंट है वो अपने हिसाब से अलग अलग पार्ट में आपके अलग अलग काम करेंगे। लाइक हम लोगों ने जैसे लेक्चर्स बनाए हुए हैं कि आपका सैटरडे के 2 लेक्चर्स जो है वो टाइम पे आपका कोई एक पॉइंट ही काम करेगा, दूसरे टाइम पे दूसरा पॉइंट काम करेगा। तो ये हिसाब से हम लोगों ने हम लोग के अलग अलग जो है पेजेस बनाए, आई मीन लेक्चर्स बनाए हुए, गेटिंग, इट्स लाइक दैट। सो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर सेगमेंटेशन कैसे काम करेगा, सो सेगमेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास मुझे अगर आप देखो कि आप जो भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो सारे प्रोग्राम्स पहले जाते कहाँ पे, वो जाएंगे आपके रैम के ऊपर। रैम के ऊपर वो ओपन होंगे एंड बाद में वहां पे 1 by 1 जो है वो सारे प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, बराबर है। तो वहां पे उसके पेजेस आएंगे, लाइक एज यू कैन सी इन दिस। Suppose the user starts launching applications. Sooner or later, the memory is going to fill up. Notice how different processors occupy different amounts of memory.
These portions of memory are known as segments. They're based simply on the sizes of the programs. For each process, the operating system knows its starting location and how big it is, so it knows where everything is. When a request is made to launch some more software, perhaps a word processing application, something has to move out of memory to make room for it. If one of the processors belonging to the presentation software is currently doing nothing, the operating system might decide to move it to disk, temporarily. गाइस यहाँ पे ये देखो, ये आपको स्वैप मेमोरी दिया है। आपको मैंने वेरी फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ना लिनक्स रेड हैट हम लोगों ने इंस्टॉल करना सीखा था, उसमें क्या चीज़ कैसे होता है वो देखा था। तो अगर आपने वो मैंने जो आपको बताया था या उसके बाद में वो प्रैक्टिकल का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो एक वर्चुअल मशीन बनाया था, वो वर्चुअल मशीन पे हम लोगों ने सपोज अगर 2 GB रैम अलॉट किया था वो वर्चुअल मशीन को, तो हम लोगों ने उसके सामने एक अलग से स्वैप मेमोरी भी क्रिएट किया था। अब क्या होता है, आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका रैम है, ठीक है, ये जो फिजिकल मेमोरी है दिस इज योर रैम। हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार कि आपका कंप्यूटर फास्ट चलने के लिए आपका रैम जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी ये आपका रैम है, उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया हुआ है, बराबर है, ये विंडोज 10 जो है मेरे कंप्यूटर पे रन हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली मेरा जो रैम है फिजिकल मेमोरी है उसमें से अगर ये सपोज 8 GB मेरे लैपटॉप में सपोज रैम है, तो 8 में से समझ लो कि 1 से 2 GB जो है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। 8 GB में से 2 GB इज ऑक्यूपाइड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, और बाकी का जो 6 GB है ना उसमें आपके एप्लीकेशन लोड होंगे। जैसे अगर मैं कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन लोड कर रहा हूँ, वर्डप्रेस साइट कोई मतलब एक्सेल या कुछ लोड कर रहा हूँ, ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, बराबर है, कोई मैंने गेम स्टार्ट कर दिया, कोई मूवी स्टार्ट कर दिया, तो वो सबके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है वो आपके रैम पे आता है, और यहाँ पे जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे आपके कंप्यूटर पे वो आउटपुट दिखता है आपको। तो अब क्या होता है कि समझ लो कि ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, ये मैंने चालू करके हम लोग का लेक्चर चालू हुआ ना उसके पहले से मैंने ये पीपीटी प्रेजेंटेशन चालू किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक एक भी बार मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया नहीं ना, मैंने उसको एक्सेस किया। मतलब ये जो है ना ये लॉन्गेस्ट अनयूज्ड प्रोग्राम है ऑन आर रैम, रिमेंबर, लॉन्गेस्ट अनयूज्ड प्रोग्राम ऑन आर रैम। तो अब क्या है कि अभी मैं कोई एक गेम या ब्राउजर में कोई एक वीडियो चालू करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रैम है ना वो भरा हुआ है। तो अभी आपका ब्राउजर कभी चालू होगा, जब ये रैम में जगह होगा। तो रैम में जगह कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक प्रोग्राम, जैसे प्रेजेंटेशन मैंने क्लोज नहीं किया है लेकिन यूज भी नहीं किया है बहुत टाइम से, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे आपके रैम के ऊपर जो लॉन्गेस्ट अनयूज प्रोग्राम है जो बहुत टाइम से आपने ओपन करके रखा है लेकिन वापस उसको एक्सेस नहीं किया, उसको वो टेम्पररी उठा के आपका फिजिकल मेमोरी या जो रैम है वहां से उठा के उसको स्वैप मेमोरी पे लेके जाएगा। तो अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, so, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम है यहाँ से इसको हम लोगों ने उठा के यहाँ पे रख दिया आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन को, तो अब ब्राउजर को ओपन होने के लिए यहाँ पे जगह हो गया, तो अभी मेरा कोई न्यू प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रैम पे लोड हो सकता है। गेटिंग? अब सपोज कि अब अगर मैं यहाँ पे जब मैं अगर एक ये प्रोग्राम लोड हुआ, यहाँ पे मैंने नया प्रोग्राम जो है वो लोड कर दिया, देखो ये वर्ड प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे लोड कर दिया, अब मेरा वो नया प्रोग्राम चल रहा है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सडनली अभी ये वर्ड प्रोसेसर जो है ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, बराबर है, और उसके बाद में वापस मुझे प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, सेम जो प्रोग्राम मैंने स्वैप पे उठा के रखा था उसको वापस वहां से उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। ध्यान से देखो अभी जो भी मैंने कुछ आपको बताया वो temporarily at least, so the word processing programs can begin. When another request is made, perhaps to launch a web browser this time, another idle process of at least equal size has to be moved out of memory to make way. In order for the spreadsheet process in the swap file to start running again, something else of at least equal size has to be swapped out. Although there is enough free space to allow for this, the free space is fragmented. In a segmented memory management system, each process is atomic. It can't be split up. It's all or nothing. So the spreadsheet process is going to have to wait.
The chances of the large presentation process getting back into memory are now particularly low, because a number of adjacent processes will have to become idle before this can happen. In summary, in a segmented memory management system, segments are swapped between disk and main memory as needed. Program segments correspond to blocks of program. सो सेगमेंटेशन में क्या होगा, आपका जो मेन मेमोरी है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा जितने आपके प्रोग्राम्स हैं उसके बीच में. सो जब अगर आप कोई एक नया प्रोग्राम को ओपन करेंगे और अगर रैम पे अगर उसका जगह नहीं है तो वो क्या करेगा, टेम्पररी वो प्रोग्राम को रैम से उठा के कहाँ पे भेज देगा, स्वैप मेमोरी पे, है ना, विच इज अ बफर टाइप ऑफ अ मेमोरी. तो रैम जब फुल हो जाता है और आपको और प्रोग्राम्स लोड करने और आपके कंप्यूटर पे अगर जगह नहीं है तो क्या होगा कि अभी आपके रैम जो है वो फुल है, उस पर जगह नहीं है और आप अगर और प्रोग्राम ओपन करने की ट्राई करेंगे ना तो आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाएगा. तो वो ऐसा हैंग होने से बचाने के लिए हम लोग स्वैप मेमोरी रखते हैं. तो उस पर क्या होगा, जो एक कोई प्रोग्राम आपने अपने कंप्यूटर पे ओपन किया था लेकिन वो बहुत टाइम से आइडल है या अनयूज्ड है, जिसको आपने बहुत टाइम से ओपन तो कर दिया लेकिन यूज नहीं किया, उसको हम लोग रैम से उठा के कहाँ पे रख देंगे, स्वैप मेमोरी पे, बराबर है. और जो रैम का जगह आपका खाली हो गया वहां पे आपका जो न्यू प्रोग्राम आप बोल रहे हो वो लोड हो जाएगा. अब वो आपका न्यू प्रोग्राम लोड हुआ, आपने उसका काम हो गया, अब वापस आपने जो प्रेजेंटेशन जो आपका स्वैप मेमोरी पे चले गया, आपने वापस प्रेजेंटेशन ओपन किया तो क्या होगा, स्वैप मेमोरी से जो प्रोग्राम आपने कॉल किया है वो रैम पे आ जाएगा और वापस रैम पे जो लीस्ट यूज्ड प्रोग्राम है, लीस्ट यूज्ड या बहुत टाइम से जो यूज नहीं हुआ है वैसा प्रोग्राम टेम्पररी स्वैप पे चले जाएगा. तो ये स्वैपिंग बिटवीन प्रोसेस होते रहता है. कहाँ पे ये स्वैपिंग कहाँ पे होगा, ये रैम और जो आपका स्वैप मेमोरी है उसके बीच में प्रोसेसेस जो है वो ऐसे आते जाते रहते हैं. तो अगर मैं ज्यादा प्रोसेस ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरा रैम फुल हो गया, तो रैम से थोड़े अनयूज्ड प्रोग्राम या लीस्ट यूज्ड प्रोग्राम वो कहाँ पे जाएंगे, स्वैप पे जाएंगे. और वापस वो जो प्रोग्राम जो स्वैप पे उसको अगर मैं कॉल करूंगा तो रैम पे जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसमें से अनयूज्ड प्रोग्राम स्वैप पे चले जाएंगे और स्वैप का प्रोग्राम वापस रैम पे आ जाएगा. याद रखो, जब तक मैं कोई एक प्रोग्राम को बंद नहीं करता हूं वो रैम मेमोरी या स्वैप मेमोरी में ही रहेंगे. वो बंद कब होंगे, जब वो मैं उसको पूरा क्लोज कर दूंगा तब जाके वो बंद होंगे. और दूसरी बात, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया तो आप देखो फर्स्ट टाइम जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हो ना, इट टेक्स सम टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप उसको ओपन करते हो तो वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में ओपन हो जाता है. क्यों, बिकॉज वो ऑलरेडी उसके जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है ना, वो आपने उसको बंद करने के बाद में भी कोई नया प्रोग्राम आपने ओपन नहीं किया तो उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अभी भी वहां पे रैम में या फिर कहीं ना कहीं कैश मेमोरी में प्रेजेंट है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कॉल कर रहे हो ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि प्रीवियसली अभी हम लोगों ने वो प्रोग्राम एक्सेस किया था. ठीक है, सो ये सेगमेंटेशन कंसेप्ट हुआ, ध्यान से देख लो अभी. Program code such as procedures or functions. Data segments correspond to data structures such as stacks, queues or graphs. Segments vary in size. The operating system knows the start and size of each segment in physical memory. Each segment is atomic. Either the whole segment is in RAM or none of the segment is in RAM. A segment in memory can only be replaced by a segment of the same size or smaller. Segmentation can result in memory fragmentation, a lot of small segments with gaps in between. Large segments may not be allowed into the memory very often at all. Segments can be pushed together to limit the amount of fragmentation and allow large segments to be loaded more often. With paged memory, as far as any one program is concerned, it has the whole memory to itself, which of course is not true. But the operating system allows the program to behave as if this is the case. A program's view of the memory is called logical memory. In reality, each program is broken up into a number of equal-sized pages,
Each page is only 4 kilobytes in size, so a single page might contain a single program, more than one program, or just part of a program. These pages could be anywhere in physical memory that the operating system decides to put them. Indeed, some pages may be on secondary storage. To make this possible, the operating system maintains a page table with information about which logical locations map to which physical locations. As far as any one program is concerned, the memory is a quiet place. So यहाँ पे देखो, आपको ये जो पेज टेबल बोला है ना, दिस इज लाइक एन इंडेक्स. आपका एक टेक्स्ट बुक में भी मल्टीपल पेजेस होते हैं. अब कौन से पेज पे क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है ना, कौन सा यूनिट कौन से पेज से चालू रहा है, वो सब कहाँ पे डिटेल होता है, इंडेक्स में. सो दिस इज लाइक अ पेज टेबल. सो एक बड़ा सा फाइल है जिसके बहुत सारे पेजेस है. जैसे चैप्टर 1 सपोज 50 पेजेस है उसके, तो यहाँ पे वो बताएगा कि चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से चालू हो रहा है, देन उसका मेमोरी लोकेशन पेज नंबर 2 कहाँ पे, 3 कहाँ पे, 4 कहाँ पे, वो सब आएगा. तो फिजिकल मेमोरी पे आप देखो कि जैसे हम लोगों ने हार्ड डिस्क पढ़ा था, तो हार्ड डिस्क में एक साथ ऐसा नहीं रहेगा कि बाजू बाजू में सारे प्लेसेस खाली रहेंगे. जैसे आप अगर क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करने आते हो, आपका 10 लोगों का बड़ा सा ग्रुप है, तो ऐसा जरूरी नहीं रहेगा कि आपको 10 लोगों को साथ में ही बैठने मिलेगा क्लास में. इट माइट पॉसिबल 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 2 लोग वहां पे बैठे हैं, 2 लोग और कहीं, तो ये 3 लोग और कहीं पे बैठे हैं, बराबर है. लेकिन हम लोग के पास पेज टेबल है, या फिर हम लोग के पास एक लिंक है जिसमें हम लोगों ने बोला हुआ है कि ओके ये हम लोगों का एक ही ग्रुप के पार्ट है, जिसमें से मेंबर 1 ये यहाँ पे है, मेंबर 2 का लोकेशन ये है, मेंबर 3 का लोकेशन ये है, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये. तो आपका एक ही जो फाइल है वो मल्टीपल पेजेस में डिवाइड होता है, और कौन सा पेज मतलब आपका फाइल का कौन सा टुकड़ा कहाँ पे स्टोर है, वो हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, इंडेक्स से या पेज टेबल से. ठीक है, इसको पेजिंग बोलते हैं. ध्यान से देखो अभी. Here's the word processor's view of the memory if it is also running. And here's what the spreadsheet application thinks is going on. The reality of physical memory is, of course, somewhat more complicated. When yet another program, or indeed data, wants to access the memory, it may well be loaded in a fragmented state. If there isn't enough space, some of the other pages will be moved to disk. This is called paging out. When a program on disk is required again, it will be paged back in. Supplementing the RAM with secondary storage like this is called virtual memory. In a busy system, when the memory is almost full, there can be so much paging activity that the computer becomes unusably slow. This is called disk threshing or disk thrashing. In summary, with paged memory, the memory is split up into small, equal-sized sections called pages or page frames. A single application might occupy multiple pages, which aren't necessarily contiguous. Each application program has its own view of the memory. This is called logical memory. A page table records where the different pages of a program are located in physical memory. Unused pages may be paged out to a swap file on disk to make room for others. And these pages are paged back in when they're needed again. Supplementing physical memory with secondary storage is known as virtual memory. When memory is low, excessive swapping can lead to disk threshing, and this can degrade performance. So what's better, segmentation or paged memory? Segmented memory makes an entire block of code available to the processor, which allows for fast access. Segmentation, on the other hand, can lead to fragmentation of free space. With segmented memory, large processors might not get access to the memory very often. Paged memory, on the other hand, can lead to fragmented processors, which will run more slowly. However, paged memory makes better use of free space. Windows uses paged memory. Segmented memory is not as common. Some processors support a hybrid of paged and segmented memory management, in which each segment consists of several fixed-size blocks.
the best of both worlds. ओके, सो आई होप सेगमेंटेशन एंड पेजिंग समझ में आया. नेक्स्ट टाइम हम लोग वो सेम नोट्स में से डिस्कस कर लेंगे. आज अब मैं वो नहीं बता रहा हूँ. आई होप आज जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो सबको क्लियर है. एनीवन, एनी डाउट्स? बताओ जल्दी से. एनीवन?